नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। ये फोर्थ पार्ट रहेगा, ये 4 पार्ट वीडियोस का, जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। Who among the following can be rightly termed as holder? होल्डर किसको बोला जा सकता है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लीगल पोजेशन एंड लीगल इंटाइटलमेंट टू रिसीव पेमेंट ऑन हिज ओन नेम। ठीक है, a person to whom the note is endorsed and is entitled to receive payment on his own name. B. A promissory note payable to A beneficiary है और order is handed over by A to B for safekeeping. B सिर्फ as the security guard है without endorsement. Therefore, who is the holder of the instrument? होल्डर A ही होगा, B को बिकॉज इन पोजेशन लेने का लीगल राइट नहीं है, उसको पेमेंट नहीं मिल सकता। पेमेंट भी किसको मिलेगा? A को। Therefore, A will be the holder. A option is correct. Which of the following best describes the legal condition to be recognized as holder? होल्डर के लिए 2 conditions हैं, legal possession and legal entitlement to receive payment in his own name. Okay? Therefore, physical possession, no. Authority to file complaint, no. Legal entitlement to possess and receive payment in his own name. Yes, C option is correct. If a bearer check is stolen and presented for payment by a thief, okay, चोर है, क्या उसको होल्डर बोल सकते हैं? नो, बिकॉज उसको लीगल पोजेशन नहीं है उसके पास। ठीक है, नो, बिकॉज थीफ लैक्स लीगल इंटाइटलमेंट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। In which of the following situations does a person in possession not qualify as a holder? Instrument possession में है फिर भी होल्डर नहीं है। ठीक है, इट मीन्स लीगल पोजेशन, लीगल इंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है, अ पेई होल्डिंग एन इंडोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, नो. A banker holding, no. An agent possessing the instrument for safekeeping without endorsement, yes. एजेंट उसको इंडोर्स नहीं करा गया, सिर्फ एज अ सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए है। ठीक है, देयरफॉर उसको पेमेंट नहीं मिल सकता। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ होल्डर अंडर सेक्शन 8? होल्डर के लिए 2 कंडीशंस, लीगल possession and legal entitlement to receive payment in his own name. Okay, every endorsee is holder, no. Only the payee can be holder, not a bearer. Holder must be entitled to possess the instrument and to receive, yes. C option is correct. 2 conditions must be satisfied. Okay, C option is correct. A check is endorsed by A in favor of B. A ने B को endorse करा, but it is stolen by C before delivery. Okay, delivery हुआ ही नहीं, it means B को. Who is the holder? Therefore, holder तो A ही रहेगा, क्योंकि B को तो चेक मिला ही नहीं है. Therefore, A will be the correct option. ठीक है. Can a person whose name is not mentioned on the instrument ever considered a holder? Yes. किस केस में हो सकता है? Bearer के केस में. ठीक है. Yes, if they find it and present for payment, no. ये तो होल्डर होगा ही नहीं, इलीगल पोजेशन है. Yes, if the instrument is bearer instrument, yes, and has been delivered lawfully, yes. bearer के केस में सिंपल सिग्नेचर होंगे, इंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा, सिंपल डिलीवरी दे दी जाएगी. ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट. Which one of the following does not satisfy the requirement of to be a holder? होल्डर को कौन सेटिस्फाई नहीं करता? कौन सी कंडीशन? अब पर्सन इन लीगल पोजेशन तो होल्डर ही होगा. पर्सन नेम्ड एज पे इन प्रॉमिसरी नोट, ये भी होल्डर होगा. अ थीफ हु टेक पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस, इलीगल पोजेशन. सी ऑप्शन इज करेक्ट. A check payable to X or order is endorsed by X in blank. Blank endorsement है, कोई इशू नहीं है. Who can become a holder now? जिसके पास भी लीगल पोजेशन होगा वही होल्डर हो जाएगा. Any person in lawful possession of the check will be holder. C option is correct. Who among the following is considered holder for value? Holder for value क्या होगा? Holder plus value at any consideration value in past or in present. Okay, there 2 conditions must be satisfied. Holder होना चाहिए और कोई consideration value होनी चाहिए present में या past में. Okay, thief who steals a beer check, no. A person who finds lost check, no. A charitable trust who receives check donated by someone who paid value for it, yes. C option is correct. Which of the following person is not eligible to be called holder for value? किसको नहीं बोल सकते holder for value? A person who paid consideration, अगर consideration चाहे receiving के टाइम हुआ है वो भी holder for value हो सकता है. Person who agrees
ये तो गलत होगा। पर्सन हु एग्रीज टू पे कंसिडरेशन इन फ्यूचर, ये भी ऑप्शन नहीं है। हमने होल्डर फॉर वैल्यू जो नहीं है वो बताना है। अ पर्सन हु हैज पेड वैल्यू इधर एट द टाइम ऑफ रिसीट और इन द पास्ट, ये भी होल्डर फॉर वैल्यू होगा। अ पर्सन हु रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट एज गिफ्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज पहले कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, सिंपल गिफ्ट है। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। A gives check of rupees 10,000 to B as a gift, 10,000 का गिफ्ट दिया एज अ चेक। A had earlier received from C in the settlement of dues, it means consideration पहले हो चुका है। तो B का स्टेटस क्या होगा? B of course holder for value होगा, ठीक है। B is a holder for value since the value has been paid earlier, B option is correct. Which of the following best distinguishes a holder in due course from an ordinary holder? Holder in due course क्या होगा दोस्तों? It must be a holder एंड विद कॉन्सिडरेशन एंड इन ऑनेस्टी उसने लिया होगा, ये हमने थ्योरी क्लास में देखा था, ठीक है। बिफोर मेच्योरिटी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बाय करता है विद कॉन्सिडरेशन एंड इन दी ऑनेस्ट, उसको नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट हैव फिजिकल पोजेशन, ये तो गलत है, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स रिसीव द इंस्ट्रूमेंट एज अ गिफ्ट, नो। होल्डर इन ड्यू कोर्स टेक्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉन्सिडरेशन एंड इन गुड फेथ, यस ऑनेस्टी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, Which of the following persons cannot be considered a holder in due course? किनको holder in due course नहीं बोला जा सकता? Person who receives check in settlement, no, इनको बोला जा सकता है। A person who finds a lost bearer check and presents for payment, देखो इसको गुमा हुआ चेक मिला है तो entitlement for payment नहीं है, क्योंकि ये तो holder ही नहीं होगा, तो holder in due course क्यों होगा? ओके, तो ये B option is correct. A receives a bill that is undated and incomplete. Okay, he fills the missing detail, वो खाली चीजें भर देता है and usually without the drawer's consent, no problem. Can the recipient be holder in due course? Holder in due course हो सकता है, हाँ हो सकता है। किस केस में? अगर वो consideration value पे करे, before maturity buy करे and properly stamped instrument होना चाहिए, ठीक है। Yes, it can be if he paid value and stamp covers the amount filled in. C option is correct. Why is the condition of acquiring the instrument before maturity essential in holder in due course? Maturity की पहले इंस्ट्रूमेंट बाय करना, ये कंडीशन क्यों डाली जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मेच्योरिटी के बाद भी इंस्ट्रूमेंट सर्कुलेट हो रहा है तो शक होता है कि शायद इंस्ट्रूमेंट कहीं फॉर्ज ना हो, ठीक है, क्योंकि हर बंदा मेच्योरिटी पे तो पेमेंट ले ही लेगा। ओके, therefore करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिकॉज आफ्टर मेच्योरिटी सस्पिशन may arise about the title. Yes, B option is correct. Which of the following disqualifies a person from becoming a holder in due course even though consideration was paid and the instrument was before maturity? दो कंडीशन सेटिस्फाई है फिर भी वो डिस्क्वालीफाई कर गया, क्यों? ये हो सकता है अगर उसको पता हो कि कोई डिस्प्यूट है, पहले कोई डिसऑनर हुआ है या कोई इंसॉल्वेंसी है, फिर भी वो बाय करता है, ठीक है, मींस ऑनेस्टी में नहीं है, तो देयरफॉर वो नहीं होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द पर्सन हैड नॉलेज ऑफ ड्राफ्ट इंसॉल्वेंसी एंड फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट। ओके, a person receives a check dated 10th August as payment for goods sold. He accepts on 12th. Okay, after maturity accept हुआ है without noticing, and is he holder in due course? No. क्यों? After due date लिया उसने। No, because he took the check due. Okay, B option is correct. A person receives a bill of exchange torn in several pieces but carefully pasted together. उसको पता है कोई डिफेक्ट है। He notices sign of cancellation. उसको पता है, it means वो honest नहीं है। Is he a holder in due course? No, because he had a sufficient cause to doubt its validity. Therefore, no. A bill of exchange is endorsed to D after maturity. After maturity, D pays value and has no knowledge of any defect. सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बट सिर्फ आफ्टर मेच्योरिटी वाली नहीं हो रही। Therefore, no, it is not a holder in due course. Therefore, क्या आएगा? Can D be a holder in due course? No, because the instrument was endorsed after maturity. B option is correct. Which of the following examples violates the requirement of good faith for being holder in due course? Good faith पे इंस्ट्रूमेंट बाय होना चाहिए, तो ये कौन सी वायोलेशन कहां पे हो रही है? एक्सेप्टिंग अ चेक फ्रॉम रेगुलर क्लाइंट, ये वायोलेशन नहीं है। एक्सेप्टिंग अ बिल टू बी डिसऑनर्ड प्रीवियसली, आपको पता है कि बिल डिसऑनर हो चुका है फिर भी आपने लिया, तो ये वायोलेशन है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
A check is issued to X in repayment of gambling debt. Illegal consideration है, no problem. X endorses it to Y, okay, for full value and Y is unaware of its origin. What is Y status? देखो जो मर्जी घपला पहले हो रुका है, but Y innocent है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता. Therefore Y holder in due course होगा. Y is a holder in due course as he gave value and acted in good faith. वो innocent है, चाहे illegal consideration है, फिर भी वो good faith पे उसने लिया, उसको नहीं पता. Okay, A option is correct. Under which condition does a holder lose the protection granted to holder in due course? Okay, किस केस में? जब holder in due course वो नहीं होगा. If he receives the instrument from minor, no. If he receives the instrument for value, but after maturity, yes. After maturity लिया तो वो holder in due course नहीं है, तो अब उसको protection नहीं मिलेगा. B option is correct. A check is endorsed to A, then to B, A to B. Who loses it? उसने गुम कर दिया. सी को मिल गया वो चेक एंड प्रेजेंट्स इट फॉर पेमेंट. सी चोर है, सी को मिला है, सी होल्डर ही नहीं होगा. कैन सी बी होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर ही नहीं होगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे हो सकता है? नो, बिकॉज सी डिड नॉट रिसीव द इंस्ट्रूमेंट लॉफुली. ओके. In the context of inchoate stamped instrument means incomplete instrument है. Who among the following gets protection under section 20? किसको protection मिलता है? Incomplete instrument के केस में भी. Okay. The original drawer who left the instrument blank, नहीं, इसको नहीं मिलेगा. सिर्फ holder in due course को मिलता है, ठीक है. Holder in due course who lawfully received the instrument from the ट्रांसफर. यही तो बेनिफिट है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, ठीक है. अगर इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट भी है, चाहे वो बाद में फिल कर दिया जाए ज्यादा अमाउंट से भी, तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेनिफिट मिलता है. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. A drawer signs a stamped blank check, okay, and instructs the payee to fill 500. The payee fills 1000 and transfers to holder in due course. What amount can the holder in? Yes, ये तो उसको प्रोटेक्शन है ही है, चाहे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट था बट प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंच गया. अब वो फुल अमाउंट के लिए लायबल है. ओके. उसको 1000 के लिए ही वो लायबल रहेगा, बट स्टैम्प होना चाहिए प्रॉपर. ओके. सेक्शन 36 ऑफ एनआईए के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज का क्या रोल रहेगा टुवर्ड्स होल्डर इन ड्यू कोर्स? सारी पार्टीज लायबल रहेंगी अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट है. ओके. ओनली द इन्डोर्सर इज लायबल. ऑल प्रायर पार्टीज आर जॉइंटली लायबल अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज. यही तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की प्रोटेक्शन है, बेनिफिट है. ओके. सी ऑप्शन इज करेक्ट. What privilege does section 20 grant to the holder in due course regarding incomplete instrument? क्या प्रोटेक्शन मिलता है? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है भी है, जितना अमाउंट उसमें बाद में फिल कर दिया जाएगा सारा पेमेंट उसको मिलेगा. ओके. He gets good title to the full amount if stamp covers the amount, but amount प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड होना चाहिए. चाहे इनकम्प्लीट था, जितना भी भर दिया गया सारा अमाउंट उसको मिलेगा बिकॉज वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है. ओके. सी ऑप्शन इज करेक्ट. A check endorsed multiple times is dishonored. Okay, the holder in due course sues all prior parties. Who is liable? देखो holder in due course ने sue कर दिया कोर्ट में, सारी prior parties liable रहेंगी. Okay, all prior parties until the check is discharged. और ये section 36 में ये mentioned है. Okay, C option is correct. Under section 42, when can a drawer not deny liability on the ground of fictitious person? दोस्तों fictitious person का क्या है? अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करा जाता है इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन और बाद में घूम घूम के इंडोर्स होके वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को पूरा पेमेंट होगा. इस ग्राउंड पे रिजेक्शन नहीं हो सकता कि भाई ये स्टार्टिंग में फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे पेएबल था. ओके. ये सेक्शन 42 के अंदर ये मेंशन्ड है. ओके. ये आप एक बार यहां से एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं. Therefore, when the bill is drawn by an actual person using false signature, no. When the instrument is endorsed to fictitious person, no. When the bill is drawn in the name of fictitious person and the later endorsed to holder in due course, yes. C option is correct. Initially fictitious person के नाम पे ड्रॉ करा गया, फिर इंडोर्स भी कर दिया गया, बट फाइनली इसके पास पहुंच गया. अब जो भी बीच में पार्टीज हैं वो सब लायबल होंगी. C option is correct. A bill is drawn in the name of non-existent person is endorsed and negotiated. Who gets protection under section 42? सेक्शन 42 के अंदर होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा पूरा. ठीक है, चाहे फिक्टिशियस है, नॉन एग्जिस्टेंट है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. देयरफॉर द होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गेट द प्रोटेक्शन एंड जितनी प्रायर पार्टीज होंगी सब लायबल होंगी इस केस में. ओके. सी ऑप्शन इज करेक्ट.
Which of the following best explains the privilege granted by the section 46 to holder in due course? दोस्तों सेक्शन 46 क्या कहता है? ये कंडीशनल डिलीवरी का है, ठीक है? अगर कंडीशनल डिलीवरी अप्लाई करा, बाद में कंडीशन नहीं भी फुलफिल हुआ, बट अगर इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है तो उसको पेमेंट डिनाई नहीं होगा इस ग्राउंड पे कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ था. Okay, he can recover from prior parties despite conditional or special purpose delivery. A option is correct. A bill is handed over to B with instructions, do not use until I say so. Okay, B negotiates to C who is holder in due course. What is C's position? देखो, A ने B को दिया, उसको instructions दी, जब तक मैं कहूँ ना तुम यूज मत करना, बट C ने endorse कर दिया, C के पास बिल आ गया जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स था. नो इशू. कंडीशनल डिलीवरी हो भी तब भी कोई बात नहीं है. तो सी की पोजीशन क्या? सी को पूरा पेमेंट मिलेगा. सी कैन नॉट क्लेम पेमेंट, सी मस्ट वेट, सी गेट फुल राइट एंड कैन इन्फोर्स पेमेंट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ए और बी बाद में अपना डिस्प्यूट कर सकते हैं कोर्ट में कि मैंने इसको मना करा था, इसने फिर भी करा, बट सी को पेमेंट पूरा मिलेगा थ्रू ए एंड बी. ओके. Which of the following scenarios does not affect the right of holder in due course? इसमें से किस में इफेक्ट नहीं आता? अगर ड्रॉयर सिग्नेचर फॉर्ज्ड है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? ड्रॉयर्स नेम इज फिक्टिशियस. अगर फिक्टिशियस नेम है, हाँ यस, ये अंडर सेक्शन 42 डिफाइंड है, तब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट करना ही होगा प्रायर पार्टीज को. बी ऑप्शन इज करेक्ट. What happens to negotiable instrument once it passes through holder in due course according to section 53? दोस्तों सेक्शन 53 कहता है अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू पास हो जाता है तो वो क्लीन हो जाता है विद प्रायर एनी डिफेक्ट्स. ओके, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम प्रायर डिफेक्ट्स इन टाइटल. सी ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें एक ऑप्शन में अब एग्जांपल देता हूं. सपोज ए ऑब्टेन्स इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बी थ्रू फ्रॉड. नो इशू, फ्रॉड हुआ है, ए ने सी को इंडोर्स कर दिया जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है. अब इंस्ट्रूमेंट क्लीन हो गया, ठीक है? सी ड्यू कोर्स होल्डर इन ड्यू कोर्स है, सी ने डी को भेज दिया. अब अगर चाहे डी को पता भी हो कि फ्रॉड हुआ है, बट डी को फिर भी क्लीन टाइटल मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स से बिल पास हुआ है नीचे सी, ठीक है? सी होल्डर इन ड्यू कोर्स था, देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू सी बाय बी, a holder in due course, and C knows that the instrument was originally obtained through fraud. C को देखो पता है कि फ्रॉड हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है? Therefore C होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज उसने ऑनेस्टली पेमेंट नहीं लिया. Therefore उसको कैन C still claim payment? No, because C knows about the fraud. C option is correct. Which of the following best illustrates the protection offered by section 58? Section 58 in case of theft, fraud, कुछ भी होता है तो holder in due course को protect करता है. Okay? A stolen note can be enforced by holder in due course. Yes, अगर कोई चोरी हो जाता है तो वो उसमें रिकवरी हो सकता है. B option is correct. Who cannot claim protection under section 53 when receiving an instrument originally obtained by फ्रॉड? देखो सेक्शन 53 के केस में अगर कोई बंदा फ्रॉड में शामिल है तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? अ पर्सन हु नोइंगली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रॉड. सी ऑप्शन इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, अ पर्सन लायबल ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट डिनाई पेमेंट टू होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑन द ग्राउंड दैट. सेक्शन 58 कहता है अगर कोई चोरी हो जाए, लॉस हो जाए, फ्रॉड हो जाए, फिर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रोटेक्टेड है, बट प्रोवाइडेड वो फ्रॉड का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? द इंस्ट्रूमेंट वॉज लॉस्ट और ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेवर साइंड. यस, अगर इंस्ट्रूमेंट लॉस हो गया या फ्रॉड से मिला फिर भी उसको प्रोटेक्शन है. ओके. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एक एग्जांपल है, A steals check from B and gives it to C. C knows it is stolen. He is just a holder and cannot enforce it. Yes, C is a holder है. D receives in a good faith for value without knowledge of theft. D बन गया holder in due course. तो अब ये सब पार्टी से पेमेंट निकाल सकता है, बट अगर सिंपल होल्डर होता तो प्रॉब्लम आता, तब वो इन्फोर्स नहीं कर पाएगा. ओके. यही प्रोटेक्शन है होल्डर इन ड्यू कोर्स को. Therefore B ऑप्शन इज करेक्ट. Under section 118 of NIA, what legal presumption is made about every holder of negotiable instrument?
118 सेक्शन कहता है कि जो भी होल्डर है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है, अनलेस और अनटिल इट इज प्रूव्ड कॉन्ट्ररी, ओके, दैट दे आर होल्डर इन ड्यू कोर्स। कोर्ट ये एज्यूम करती है कि जो होल्डर है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है। ऑपोजिट पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो नहीं है, ओके, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा उसकी फेवर में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। In a legal dispute, who bears the burden of proof if it is alleged that negotiable instrument was obtained through fraud? देखो, अगर कोई कोर्ट केस चलता है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को फुल प्रोटेक्शन है, उसको पेमेंट मिलेगा, बट अगर ऑपोजिट पार्टी ये कहती है कि पहले फ्रॉड हुआ था तो इसको पता था कि भाई फ्रॉड है, तो इट मींस ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इसके लिए मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल देखता हूं, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है। देखो 118G कहता है कि कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ओके, बट अब क्या है, अगर ये पता लगे कि पहले फ्रॉड हो रखा है, तो अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही टुक द नोट इन गुड फेथ, ठीक है, कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब ये उसको प्रूव करना पड़ेगा, ओके, ही गेव प्रॉपर पेमेंट, ही डिड नॉट नो द नोट वाज स्टोलन और डिफेक्टिव, उसको खुद को इनोसेंट बिफोर मैच्योरिटी बाय करा है, गुड फेथ पे करा है, अब उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव होता है कि भाई पहले फ्रॉड हुआ था, ओके, अदरवाइज कोर्ट एज्यूम करती है कि वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है। देयरफॉर एक बार देखते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इन अ लीगल डिस्प्यूट हु बियर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स पे ही आएगा, ठीक है, जो कि होल्डर होगा, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following best describes the doctrine of estoppel as per section 120? Estoppel मतलब होता है legally stopped from saying something, okay? Section 120 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कभी ड्रॉर फ्यूचर में ये बोलता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट वैलिड ही नहीं था, ओरिजिनली वैलिड नहीं था, ठीक है, तो उस बिहाफ पे पेमेंट नहीं करता, तो ये उसका डिफेंस नहीं चल सकता, ओके, बिकॉज ये उसको प्रोटेक्शन है होल्डर इन ड्यू कोर्स को। अ ड्रॉर कैन नॉट डिनाई द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स, देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। What happens if person obtains negotiable instrument by fraud but claims protection under section 118? लिया फ्रॉड से है, देयरफॉर वो होल्डर ही नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, बट 118 के अंदर प्रोटेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? ओके, दे आर स्टिल प्रिज्यूम्ड टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स? नो, द प्रिजम्पशन इज रिवर्स्ड एंड द पर्सन मस्ट प्रूव देयर एंटाइटलमेंट। फ्रॉड हुआ है बट उसको अब प्रूव करना पड़ेगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following parties is bound by section 120 to not deny the original validity of the instrument? जब पेमेंट की बारी आए तो कौन डिनाई नहीं करेगा सेक्शन 120 के अंदर? जो ड्रॉर, मेकर और एक्सेप्टर हैं, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंच गया तो ये डिनाई नहीं कर सकते, ओके। सी ऑप्शन इज करेक्ट। As per section 121 of Negotiable Instrument Act, who cannot deny the capacity of pay to endorse the instrument when sued by holder? दोस्तों क्या होता है, लेट्स सपोज डिस्प्यूट अराइज हुआ फ्यूचर में, ठीक है, बिल था, इंस्ट्रूमेंट था होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, इसके पास इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हुआ। सेक्शन 121 क्या कहता है कि कल को एक्सेप्टर या मेकर ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जो पेई ने इंडोर्स ही गलत करा है, ठीक है, ये सेक्शन 121 कहता है कि जो एक्सेप्टर और मेकर है ये कल को ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जो पेई है उसका इंडोर्समेंट करना ही गलत था, ठीक है। जब एक बार होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया तब भाई इसको पेमेंट करना ही होगा। देयरफॉर हु कैन नॉट डिनाई? एक्सेप्टर और मेकर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Under section 122, an endorser is stopped from denying what in a suit? कल को केस होता है तो इंडोर्सर को क्या कहने का अधिकार नहीं है केस में? इंडोर्सर ये नहीं कह सकता कि जो प्रायर पार्टीज हैं उनमें किसी का सिग्नेचर का डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकता। फ्रॉम डिनाइंग द सिग्नेचर और लीगल कैपेसिटी ऑफ एनी प्रायर पार्टी, जब भी एक बार होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये सारे सेक्शंस होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। Therefore, what will be the correct option? The signature or capacity to contract of any prior party. C option is correct. Why does the law impose estoppel? Means against the maker or acceptor in denying the capacity of the payee to endorse.
ये होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एस्टॉपल्स बनाए गए हैं, ठीक है। कल को मेकर और एक्सेप्टर इन पेई को इंडोर्स करने की कैपेसिटी के बिहाफ पे उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता, ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। In a suit filed by subsequent holder, can an endorser claim that the prior endorser was legally incapable of contracting? No. क्यों? As per section 122, ये allowed नहीं है। Section 122 bars endorsers from denying capacity or authenticity of prior parties when sued by subsequent holder. Therefore, B option is correct. Which of the following best illustrates the application of section 121? Section 121 क्या कहता है कि जो एक्सेप्टर और मेकर हैं ये फ्यूचर डिस्प्यूट में ये डिनाई नहीं कर सकते होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्लेम ऑन द ग्राउंड की भाई पेई की कैपेसिटी नहीं थी इंडोर्स करने की, ओके। देयरफॉर an acceptor cannot deny the pay's legal capacity to endorse the instrument to a holder in due course. B option is correct. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, इसी के साथ ही 50 MCQs होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी आने वाली वीडियोस के साथ भी जरूर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।